Good morning, everyone. My name is Dr. Huma Hassan, and I welcome to everyone to my channel Sociology Club. As we have discussed in the previous lectures, that I'm going to give outline of UPSC syllabus, and we are going to discuss each and every topic which widely we are going to cover whatsoever it is there in the UPSC. We have already discussed that how sociology is going to help not only to the UPSC aspirants but also others who are seeking for knowledge. So today we are going to understand modernity and social changes and how sociology got emerged. So this is the first topic today which we are going to discuss. One quick tip which I want to give to my viewers, that try to understand that what every topic is demanding out of you, what you need to understand. Do not just simply follow that the notes or the study material which is available in the market or in the book. First of all, you need to understand, you need to have clarity that what is being asked and specifically what UPSC wanted from that particular topic. You need to understand that each subject, each concept, everything has some deep knowledge into it. We have to understand the roots understanding of it. Okay, what I mean is that when we are discussing modernity, social changes and emergence of sociology with respect to this topic, you seriously have to understand that what it demands. As I said in my orientation class, that everything has some orientation. Okay, it needs some understanding and you have to be focused. We do not have much of time. UPSC aspirants have this pressure, okay, in their mind that they need to cover up their syllabus, not only for optionals but for GS too. How we can overcome this problem? This can be overcome if we are focused. We really have to be focused, and that focus can come by training. So why can't we train ourselves even with the first topic which we can read it out? So let me just show you. We have discussed, I'm going to tell you that what is sociology, what does it mean, but right now I need to show you the syllabus. So this is the first topic, and again I would say to my to everyone that read the syllabus again and again. You must know, and the syllabus has to be on your tip. When I'm saying that syllabus has to be on your tip, you do not have to give extra time to the syllabus, that you keep on reading and reading and reading. Don't do that. What you can do is that you have understood the syllabus, you have seen the question papers, previous year question papers. Now when you are discussing and reading the first chapter, put and divide your syllabus. If I talk your philosophical manner and just tell you how everything in this world have been established, whether it's like power, whether it's economical things, whether it's religious thing, what happens is that we divide. And we all know the famous rule of British or colonization. What they used to do, they used to divide and rule. Stratification is a process, if we talk in a sociological manner, that stratification is a process in which we divide. So when we divide, it becomes easy to have hold on that. That's why I'm saying that even the syllabus needs to be divided. Okay, so now this is the syllabus, sociology discipline. Let me just show you a few things. Here you need to understand modernity is one important concept. Then modernity needs to be understanding with correlation that modernity came, then how social changes erupted in 18th and 19th century in Europe. Due to that, social orders got changed, and then we had emergence of sociology. So this particular topic has three broader concepts that we have to understand. So divide modernity, 1, social changes, 2, and when I'm talking social changes, it has to be political changes, 2, and then emergence of sociology. And try to understand that what is the period in which we are talking about. It's 18th and 19th century. Okay, so today I'm going to talk about this first,
and I'm going to share strategy more. So one common mistake, or if you really want to write your answer in a unique manner, you need to think unique as well. The common, as an experienced faculty of I was teaching in earlier institute in university, and I was actually there, and I used, my work was to check the diverse examination sheets. Okay, I did that in a with a distance mode, with like with in a distance modes program in sociology. Or I mean, I do not have to tell all that. I just want to say that what I have found was that this is a common thing which I have found with particular to this topic. Most of the aspirants or most of the students, they start their answer with sociology emerged in the 18th and 19th century due to industrial and political revolution. This is, I would say, this particular part, because what you have to understand, that this syllabus, along with the syllabus, for example, modernity, or social changes and emergence of sociology. This topic you need to understand along with answer writing. So some tips I would keep telling you in my class like that. So this is a common thing. Absolutely, it's not going to be incorrect, okay, but it's a very common way to introduce sociology. We'll not do that, okay. And very quickly I would just divide modernity. Okay, so to understand modernity, you must know Renaissance. आपको मॉडर्निटी समझने के लिए Renaissance का समझना बहुत ज़रूरी है. Renaissance के बाद एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट के बाद आपके लिए समझना पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, and then emergence of classical theorist, or you can say sociologist. जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया है कि मॉडर्निटी को आपको ब्रेक करना है. अभी जितनी बात मैंने कही, इट वॉज इन इंग्लिश, बट दिस प्रोग्राम इज़ नॉट ओनली फॉर इंग्लिश एस्पिरेंट्स और व्यूअर्स. ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है. मैं जल्दी से अपनी बात को हिंदी में रिपीट करती हूँ. मैंने अब तक ये बताया है कि जब हम सिलेबस देखते हैं, कोई भी टॉपिक देखते हैं, उसको हमें डिवाइड करना चाहिए, उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट लेना चाहिए और फिर उसको समझना है. ऐसा करने से हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. तो हम मॉडर्निटी को समझने के लिए हमें उसके अंदर के फैक्टर समझना पड़ेगा कि मॉडर्निटी का मतलब है क्या. एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो सबको पता है कि मॉडर्निटी का मतलब है मॉडर्न वर्ल्ड, कि आज का टाइम क्या है. 18th और 19th सेंचुरी तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन आज हम ये बोलते हैं कि हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी हैं. उसके बारे में भी हम चर्चा बाद में करेंगे. तो पहला पॉइंट हो गया आपका रिनाइंसेंस, एनलाइटनमेंट, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. एंड वन मोर थिंग विच आई वुड से दैट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि आपको जब तक आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है अपने दिमाग में कि आप एक 9th क्लास के बच्चे को समझा पाए, तब तक वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर ही नहीं है. और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात रिचर्ड फेनमैन कहते हैं, और ये बात बोलते हैं कि जब तक कोई ही इज़ अ ग्रेट फिजिस्ट, और वो बहुत डिफरेंट और डिफ़िकल्ट थ्योरीज़ को इसी तरीके से समझाते थे. तो आज मैं आपको 5 मिनट के अंदर मॉडर्निटी को समझाऊंगी. हम मॉडर्निटी की जो बात कर रहे हैं, हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र. ये किस टाइम इमर्ज हुआ था? 18th और 19th सेंचुरी में. 18th और 19th सेंचुरी को समझने के लिए, जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि ये कुछ भी चीज़ एक चीज़ का इवेंट नहीं होता है. इवेंट्स एंड प्रोसेस,
ओके। तो मे बी 18 और 19 सेंचुरी में, फॉर इंस्टेंस 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का वो एक इवेंट था जहाँ पे लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया था मोनार्की के पास और मोनार्की के अगेंस्ट, तो वो एक इवेंट था, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो मॉडर्निटी हम कह सकते हैं कि 18 और 19 सेंचुरी में आई, लेकिन 18 और 19 सेंचुरी में आने से पहले उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो हम उसको समझेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे रिनाइंसेंस का मतलब क्या होता है? रिनाइंसेंस का मतलब होता है रीबर्थ। अब एक ही वर्ड में आपको समझना है रीबर्थ मतलब दोबारा से जन्म। ओके, तो दोबारा से जन्म का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो रहा था? तो 14th सेंचुरी में, 14th और 15th सेंचुरी में हम लोग क्या कर रहे थे? जो हमारा पावर, सोशल ऑर्डर का क्या मतलब है? जिसमें समाज, लोग एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो वहाँ पे जो पावर थी, वहाँ पे जो हेजिमनी थी, वो किस चीज़ के ऊपर थी? वो थी रिलीजन और रिलीजियस सुपरस्टिशियस बिलीफ। Maybe this spelling is wrong. Superstitious belief. I have this. Maybe you just please check the spelling. But this is one thing we can say that this is a religious belief or superstitious belief. ठीक है, 14th और 15th century में. So superstitious belief, basically you can say that whatsoever a society was understanding, whatsoever the rules and regulation were being followed, it was given by रिलीजियस अथॉरिटिक और डॉगमेटिक पीपल। तो जो रिलीजियस डॉगमेटिक पीपल थे, सुपरस्टिशियस बिलीफ के अंतर्गत वो अपनी चीज़ें लाते थे और लोग उसको फॉलो करते थे। तो ये था एक चीज़ जो कि एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ थी। इट वॉज श्योरली अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, ओके, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 14th और 15th सेंचुरी में ये एक डोमिनेंट फैक्टर था। तो ये जो रिलीजियस बिलीफ था और ये जो अंडरस्टैंडिंग थी वो काफ़ी गलत थी। अगर क्लर्जीमैन ने, अगर आप कह सकते हैं जो पादरी थे, जो रिलीजियस वैल्यूज़ को कॉमन लोगों के तरफ लेके आते थे, अगर हम उसकी बात करें तो वो लोग जो भी कहते थे वो एक पत्थर की लकीर मानी जाती थी और जो कि गलत था। ओके, और वहाँ पे फिर फिलोसोफर्स जो थे, वहाँ के जो उस वक्त के थिंकर्स थे, उन लोगों ने कहा ये प्रैक्टिस गलत है, हमें ह्यूमन वैल्यूज़ को समझना चाहिए। इसीलिए अब हमें अपनी जो फ़िलॉसफी है या हमें जो अपनी सोसाइटी बेस करनी चाहिए, उसमें हमें दोबारा से देखना है रीबर्थ। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि रिनाइंसेंस में आपको क्या समझना है कि यहाँ पे जो गलत है, क्योंकि जो रिलीजियस पीपल है वो हमें नहीं बता सकते कि क्या सही है क्या गलत है। सही और गलत एविडेंसेस के बेस पे होना चाहिए। सही और गलत सही है इसलिए सही होना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे रिलीजियस थॉट ऐसा कहता है। तो इस तरीके की हमारी डिस्कशन हो रही थी। तो इसमें हम बाकी सब भूल जाएंगे और हम क्या करेंगे, बस ये समझेंगे रीबर्थ। ओके, सो रीबर्थ मतलब हमारे आइडियोलॉजीज़ को दोबारा से हमें फ्रेश करना है। अब ये तो मैंने आपको एक पॉइंट समझाया, लेकिन आपके पास कितनी नॉलेज है इससे यूपीएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या किसी भी एग्जामिनेशन में किसको फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे समझना है कि हम अपने आंसर को कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये गाइड करूँगी, या एक और चीज़ हम प्लानर बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। ये पॉइंट है कि मॉडर्निटी को समझने के लिए वी नीड टू हैव, और टू अंडरस्टैंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी वी नीड टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने बहुत ज़्यादा डीप में जाते हुए समझाया है, लेकिन हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। बट हमें पता है कि पहले हम प्राइमेट से या चिंपैंजी थे और धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन की बात आती है सोशियोलॉजी में, कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोरिलेट करके चलता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इट्स अबाउट हिस्ट्री।
तो जो आपकी हिस्ट्री का स्टोन एज की जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, यहाँ पे आप को रिलेट करके पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा, क्योंकि हम ऐसी प्रिपरेशन करें कि हमें प्रिलिमिनरी में भी हेल्प हो जाए, हमारे नॉलेज बेस बढ़े, तो एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी मैंने इस पर डिस्कस किया है, लेकिन अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगी। अगर आपको चाहिए कि मैं इस पीरियड को भी समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ओके, सो ये कुछ पीरियड था। फाइनली हम लोग, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे होलोसीन पीरियड में ह्यूमन काइंड इवॉल्व होते हैं और यहाँ से हम आगे तक जाते हैं। ठीक है, तो ये एक दो पीरियड जो ह्यूमन काइंड के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे कल्चर स्टार्ट हुआ, दैट इज़ प्लाइस्टोसिन एंड होलोसीन। ये दो पीरियड आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इसी में हमें समझना है। अब कल्चरल एवोल्यूशन हुआ, तो अब ये कल्चरल एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन। ओके, तो ये सब बहुत जल्दी से हम समझेंगे। ये पूरा हिस्ट्री है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि मेसोलिथिक एज किस तरीके से पैलियोलिथिक स्टेज आया, पैलियोलिथिक स्टेज के बाद मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, आयरन एज, और किस तरीके से हम सिविलाइज्ड हुए। सिविलाइज होने के बाद हम आगे बढ़े और फिर हम खैर 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी में आ गए। ओके, तो बहुत जल्दी से इसको हम शिफ्ट करते हैं। ओके, कम अप हियर। एज आई सेड कि आपके पास कितनी नॉलेज है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किस तरीके से आंसर लिख के आएंगे उससे फ़र्क पड़ता है। तो रेनेसांस फिलोसोफर्स को आप बहुत ही जल्दी से डिवाइड कर लेंगे। कौन है ये रेनेसांस फिलोसोफर्स? आपके जब हम सोशियोलॉजी में अपनी कोई एक बात कहते हैं, उसमें आपको कंक्रीटनेस, कंप्लीटनेस लाना होता है। ये आंसर राइटिंग के कुछ रूल्स हैं। हमेशा एक रूल्स को समझने की कोशिश कीजिए कि है क्या, हम जब आंसर्स लिखेंगे तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है, और किसी दिन मैं आप लोगों को 7 C's ऑफ आंसर राइटिंग के बारे में बताऊंगी, और उसमें एक चीज़ है दैट योर आंसर इज़ कंप्लीट, योर आंसर इज़ करेक्ट। ये आता है जब हम अपने आंसर्स में फैक्ट्स को लिखते हैं। मैंने अभी तक आपको ये बात कही कि रेनेसांस में लोगों ने ये सोचा कि हम अपनी सोच को दोबारा से रीफ्रेम करते हैं, और वो किसी रिलीजियस वैल्यू से नहीं होनी चाहिए। तो इसका प्रूफ क्या है? आप इसको कैसे बता सकते हैं लोगों को? ये हम कैसे बताएंगे? हम कोट करेंगे थिंकर्स को, हम कोट करेंगे फिलोसोफर्स को, और ऐसे नाम समझेंगे और रिसर्च करेंगे। थोड़ा आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने रिसर्च कर ली है, आप बस इस नाम को कोट करेंगे तो बहुत क्विकली। जैसे एल्बर्टस मैग्नस हैं, सेंट थॉमस एक्विनास हैं, बोनावेंचर, जॉन डन स्कॉटस, निकोला मैकियावेली, और ये तो काफ़ी फेमस हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। फ्रांसिस बेकन की पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी पोम्स। ये है थॉमस हॉब्स, रेने डेकार्ड्स, जॉन रूसे और लॉक हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं। इन लोगों ने, ये हैं रेनेसांस फिलोसोफर्स हम कह सकते हैं, जिन्होंने कहा कि हमें अपनी सोच को आगे लेके आना है, ओके, और बदलना है। तो ये नाम आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो 150 वर्ड से ज़्यादा इसमें कोई, अभी तक 150 मार्कर्स ही आ रहे हैं, लेकिन आपको वर्ड्स बजटिंग भी सीखनी है। सब कुछ हम नहीं लिख सकते, लेकिन नॉलेज तो हमें बढ़ानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये भी रेनेसांस फिलोसोफर्स हैं। इन लोगों ने क्या कहा? सोक्रेटिस तो बहुत ही फेमस हैं, बहुत फेमस हैं। इन्होंने यही बात बोली कि हमें जस्टिस को समझना होगा। एथेंस में जब डेमोक्रेसी आ रही थी, जब हम लोगों की बात कर रहे थे, तो कितनी सही थी वो डेमोक्रेसी। सोक्रेटिस कुछ लिख भी नहीं पाए, क्योंकि वो एक फ़िलोसोफर थे, और पहले के जो फ़िलोसोफर्स थे उनको सिर्फ़ और सिर्फ समाज का अच्छा करना होता था। और आज भी शायद जो फ़िलोसोफर्स होते हैं वो समाज का अच्छा ही करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली ही क्यों नहीं बात कहना चाहें। तो उनके स्टूडेंट थे प्लेटो ने इनकी बात लेके आए एलेंकस मेथड में, और बहुत फेमस बुक है प्लेटो की, द रिपब्लिक में प्लेटो ने एलेंकस मेथड को यूज़ किया
अब ये एलेंकस मेथड क्या है? सोक्रेटिक का एक तरीका था, वो डायलॉग्स करते थे, वो मार्केट्स में जाते थे, लोगों से कॉन्वर्जेशन करते थे और फिर अपनी बात को बताते थे। ठीक है, तो इसी मेथड को एलेंकस मेथड कहते हैं और एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे। तो ये कुछ नाम हम अपने आंसर्स में लिखेंगे। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस टॉपिक को कवर अप कैसे करना है। तो फिर हम एल्बर्टस मैग्नस के बारे में समझेंगे। एल्बर्टस मैग्नस कौन थे? पहले जो फिलोसोफर्स थे उनके अंदर कोई सेग्रेशन नहीं था, कोई डिवीजन नहीं था। वो फिलोसोफर भी थे, वो एस्ट्रोलॉजर भी थे, वो थियोलॉजियंस भी थे, वो स्पिरिचुअल राइटर भी थे, वो डिप्लोमेट भी थे और वहाँ पे लोग अपनी बातें बताते थे। ठीक है, तो इन्होंने भी और लेकिन उस वक्त क्या था, उस वक्त इनकी जो सोच थी, जो बाइबल कहे, जो क्रिश्चियन, जहाँ पे आप ये बुक देख सकते हैं कि हम समाज को कैसे समझेंगे थ्रू चर्च, द फिलोसफी ऑफ चर्च। ओके, तो ये कुछ थिंकर्स थे। जब मैंने आपसे ये बात कही कि पहले हमें रीबर्थ करना है, हमारी जो थिंकिंग है वो रिलीजियस से नहीं होनी चाहिए, रिलीजियस डॉक्ट्राइन से नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे कौन से लोग थे? तो ये लोग थे जो इस बारे में बात करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग प्रोग्रेसिव नहीं थे। दीज पीपल वर रियली प्रोग्रेसिव टू। फिर उसमें कुछ नाम है बॉनेवेंचर। ओके, फिर अब जब चेंज आया, वो चेंज आया मैकियावेली से, फ्रांसिस बेकन से, हॉब्स से एंड डेकार्ट्स। इन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करी, डिवीजन सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी। ओके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सेपरेशन ऑफ पावर, इस तरीके की बातें हुई। ओके, तो मैं रिनाइंसेंस के ऊपर दोबारा एक लेक्चर बनाऊंगी और फिर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। रिनाइंसेंस के बाद जो फेज़ आना है वो आता है एनलाइटनमेंट का। ओके, सो आफ्टर दिस, तो अब क्या हुआ, एक चीज़ डिस्कशन हुई 14 से आप कह सकते हैं रफली 15 to 16 सेंचुरी, लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट करा, वो था रोमांटिसिज्म। ओके, एक रोमांटिसिज्म वे में ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ, राइट। और इसमें क्या रहा, हम इसमें ये समझ चुकेंगे कि बहुत प्यार से लोग डिस्कशन कर रहे थे, समझ रहे थे कि किस तरीके से हमें अपनी सोसाइटी में वर्क करना है। जब हम 16 to 17 सेंचुरी के बाद में आएंगे, लोगों ने बहुत डिस्कशन कर लिया था। अब क्या हुआ है, एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब है फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो इसका मतलब क्या है, अब कोई डिबेट की गुंजाइश नहीं है। अब हमें ये समझ में आ चुका है कि हमें अपने समाज में, हमें अपनी सोसाइटी को वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय द लेंसेज ऑफ रीजंस। वी नीड टू हैव रीजंस। इफ आई एम सेइंग that I have to or we have to follow certain rules and regulation, there has to be scientific reasons. This is what an enlightenment, and you will read a great thinkers in this. My personal favorite is Immanuel Kant. Now when you will discuss Immanuel Kant, you need to understand that Immanuel Kant is a very important philosopher for your ethics. In fact, the previous philosophers which I had discussed, अभी जो मैंने डिस्कस करा है, वो भी एथिक्स पे और एसे में हेल्प करेंगे। तो हमें अपने गोल को, अपने फोकस को क्लियर करते हुए चलना है। एक तो हमें समझना है कि किस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी है, हिस्ट्री को कैसे जोड़ के समझना है, तो हमें फ़िलासफ़ीज़ को कैसे समझना है, तो हमें एथिक्स के पेपर में जो अप्रोचेज़ हैं उसको और जो थिंकर्स हैं उनको कैसे समझ कर चलना है। सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, ये सारे फ़िलासफ़र्स हैं जो हम एथिक्स के पेपर में या फिर ऐसे के पेपर में या जीएस कहीं भी इनको जोड़ सकते हैं। तो इम्मानुएल कांट का कहना था, और इन्होंने पूछा कि ये भी तो समझने की ज़रूरत है कि आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम क्यों नहीं अपने समाज को रीज़न से समझ सकते हैं। तो उन्होंने उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसका उन्होंने उस आर्टिकल नाम था द एज ऑफ रीजन्स, दैट्स मीन एनलाइटनमेंट। और बहुत ही प्यारी बात इन्होंने और थ्योरी कही, दैट इज़ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स अगेन ये बहुत ही लोगों को, नॉट टू मी,
ठीक है, लोगों को लगता है कि दिस इज़ वेरी डिफरेंट और वेरी डिफ़िकल्ट थ्योरीज, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, द एज ऑफ रीजन्स, हो सकता है, लेकिन जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो कुछ भी इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट नहीं होता है। सब कुछ समझने के लिए और उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं, तभी आपकी नॉलेज फ्रूटफुल होती है। सो द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव एंड द एज ऑफ रीजन्स, ये दो बात इमैनुअल कांट ने कही, और जैसे मैंने बोला कि हमें अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी करना चाहिए। सो द एज ऑफ रीज़न और एनलाइटनमेंट में उन्होंने 3 बात बोली कि क्यों सबसे पहले लोग इस तरीके से ब्लाइंडली फॉलो करते हैं जो भी हमें बता दिया जाता है। तो पहले उन्होंने बताया क्योंकि हम कॉवर्ड हैं, हम डरते हैं, हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करना चाहते। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लेज़ी हैं। तो हम लेज़ी क्यों बनाते हैं? तो इन्होंने इस पे ये बात बोली कि इट्स अ सिस्टमैटिकली डन बाय स्टेट। तो स्टेट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आते हैं, इस तरीके की बात करते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं करें। तो ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से स्टेट चाहते हैं कि हम एक डोसाइल बॉडी बने। डोसाइल का मतलब कि हमसे जो कह दिया जाए हम उसको माने, समझें और उस पर क्वेश्चन नहीं करें। ये बात सिर्फ इतनी सी ही है। एज ऑफ रीज़न और एनलाइटन में इमैनुअल कांट ने ये कहा है। दूसरा, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, दिस इज़ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स। इनमें उन्होंने 4 फ़िलासफ़ीज़ की बात करी है, 4 रूल्स की बात करी है, जो कि हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ रफली समझा देती हूँ बहुत जल्दी से, क्विकली। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स में इन्होंने कहा है कि हमारी लाइफ में मॉरल्स होने चाहिए, और सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें रिलीजन को और स्टेट को अलग करना है। हमारा फेथ क्या है वो डिसाइड नहीं करेगा कि रूल्स और रेगुलेशंस कैसे बनेंगे। ओके, तो ये दिस थिंग ही हैज सेड। और मॉरल फ़िलासफ़ी पे बात करी तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मॉरल फ़िलासफ़ी शुड बी, फॉर इंस्टेंस 2 × 2 = 4, वो सबके लिए है। तो ये जो मॉरल फ़िलासफ़ी है, इट शुड बी फॉर सेम, जो ट्रुथ है, ट्रुथ जो है वो सेम होना चाहिए सबके लिए। और इस पर बहुत डिबेट है, इसको बहुत समझने की ज़रूरत पड़ती है। अगेन मैं एनलाइटनमेंट के ऊपर नेक्स्ट एक टॉपिक पे लेक्चर बनाऊंगी, तब आपको ये समझ में आएगा। तो ट्रुथ जो है वो यूनिवर्सल होना चाहिए। तो जो फ़िलासफ़ी है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, रीजन, कोई एथनोसेंट्रिक बिलीफ नहीं होना चाहिए। एथनोसेंट्रिक बिलीफ कि मेरा जो कल्चर है, मेरी जो सोच है, जो मैं सोचती हूँ, जैसा मैं कपड़े पहनती हूँ, जैसे मैं रिलीजन मेरा फॉलो करती हूँ, जो मेरे गवर्नमेंट है, जो मैं हूँ वही सही है और दूसरे गलत हैं, या दूसरों को हमको सिविलाइज करना पड़ेगा। इम्पीरियलिज्म में और कॉलोनाइजेशन में एक ये फैक्टर भी तो था, जब क्रिश्चियन मिशनरीज ये सोचते थे कि हमें लोगों को और दूसरे अनसिविलाइज्ड कंट्रीज़ को या नेशंस को सिविलाइज करना है। वो क्यों था? उसका कॉन्सेप्ट है एथनोसेंट्रिज्म। एथनो का मतलब कल्चरल थिंग, एंड आज भी ये फाइट है, ये कोई फिनोमिनन पास्ट का नहीं है, ये आज भी है। इसको आप ईगो भी कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं सुपीरियॉरिटी, नोशंस ऑफ सुपीरियॉरिटी। ओके, हम ठीक हैं, हम जो कहते हैं वो सही है और लोगों को हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए। ये एक, इस पे सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बहुत डाइवर्स स्टडीज़ हैं। इनफैक्ट अगर मैं डिफ्यूजन थ्योरी की बात करूं, थोड़ा डीप चला जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें एक डिफ्यूजन थ्योरी है। इट सेज, फॉर एग्जांपल, British anthropologists and sociologists or social cultural anthropologists have already said this, that entire civilization which had, we can see the modern civilization or old civilization, सब इजिप्ट से आए हैं। ओके, और इजिप्ट से फिर वो डाइवर्स हुए हैं, डिफ्यूज़ हुए हैं अदर्स, बट हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। बट इट जस्ट से कि ट्रुथ जो है
वो सबके लिए सेम होना चाहिए। दूसरा उन्होंने मॉरल फिलॉसफी की बात करी है कि मीन्स और एंड्स शुड बी अगेन रैशनल। हमें लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उनको यूज़ किया और उनको थ्रो किया। सो दिस इज़ अ रॉन्ग। इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होंगी और ये गलत है। हाँ, हम सोशल एनिमल हैं, हम लोगों को इंटीग्रेशन करके रहना चाहिए, लेकिन किसी को यूज़ करके थ्रो कर दे दैट इज़ रॉन्ग। हम एक दूसरे के काम आना चाहिए। और फिर उन्होंने तीसरी बात करी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बनाए कौन, होगा कैसे। तो इस पर उन्होंने बात कही कि ये लोग खुद बनाए और ऐसे बनाए कि दैट यू आर अ रूलर ऑफ दैट प्लेस। तो जब सब खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जब खुद ये समझेंगे कि हाँ मेरे लिए क्या सही है, मैं यहाँ पे रूलर हूँ और अगर ये मेरे पे कंट्रोल है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सुना होगा ना आपने, दैट विद बिग पावर्स कम बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप अपने आप में ही पावरफुल समझिए। पावर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप दूसरों को सप्रेस करें या दूसरों की कमी को समझने के बाद उनको आप यूज़ करें। पावर का मतलब, रियल पावर का मतलब यही होता है कि आप अवेयर हैं, आपके पास नॉलेज है, आप समझते हैं कि क्या सही है, आपके पास वो सारी स्किल्स हैं, आपके पास वो सारे टूल्स हैं कि आप किसी को ऑप्रेस और सप्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास विजडम है। आपके पास विजडम है ये समझने के लिए कि क्या इस स्टेप से आपको पावर दिखाने से क्या वेलफेयर होगा समाज का या सोसाइटी का। इसी बात को एक्चुअली इमैनुअल कांट कह रहे हैं कि थिंक योरसेल्फ दैट यू आर अ रूलर, यू आर अ किंग ऑफ दैट पैराडाइज। अगर कोई किंग है तो इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आपको लोगों के लिए ख्याल रखना है। यही बात सोक्रेटिस ने भी कहा है और यही बात गांधी जी की पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये एक बात हम समझेंगे। हमने एनलाइटनमेंट कवर अप किया। नाउ वी विल कम टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है पॉलिटिकली? क्योंकि जब भी कुछ चेंजेस आते हैं तो सिर्फ एक तरीके से नहीं आते, फ़िलॉसफीज़ बदलती हैं, फ़िलासफ़र्स बात करते हैं, उस फ़िलासफ़ीज़ को सुन के समझ के लोग इग्नाइट होते हैं, लोग मोटिवेटेड फील करते हैं। तभी तो गौतम बुद्ध ने और आप कह सकते हैं महावीरा ने जब इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम जैसी रिजिड चीज़ थी उसको भी चेंज किया। तो फ़िलासफ़ी ही क्यों, आपने कभी सोचा है इन दी एंड सारी एकेडमिक्स एंड विद फ़िलासफ़ी, डॉक्टरेट ऑफ, व्हाट इज़ डॉक्टरेट? आप समझिए इसको क्या है, डॉक्टरेट इन फ़िलासफ़ी, राइट? मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट पे फ़िलासफ़ी में ही एंड होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ़िलासफ़ी टॉक्स अबाउट एवरीथिंग। फ़िलासफ़ी इज़ सेम फॉर एवरीवन। डू नॉट थिंक कि केमिस्ट्री में कोई, अगर हमने देखा है कि आइंस्टाइन की जो थ्योरीज़ हैं या इतने बड़े फिजिसिस्ट की जो भी थ्योरी करते हैं वो कॉमन लोग भी यूज़ करते हैं, तो वो क्यों एंड होती है? बिकॉज एक्चुअली में फ़िलासफ़ी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, वो एक ऐसी नॉलेज है जो सही है, सही एंड गलत। और हमारा हिंदू ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन इज़ हिंदू ट्रेडिशन, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। जो इंडियन ट्रेडिशन है वो एक हिंदू ट्रेडिशन है। और हमारी सोसाइटी क्यों इतनी स्पेशल है, इंडियन सोसाइटी क्यों इतनी स्पेशल है? क्योंकि हमारी सोसाइटी बेसिक फ़िलासफ़ीज़ पे है। उसके बारे में हम चर्चा पेपर 2 में भी करेंगे। सो अब आप समझिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन में वी नो दैट किंग लुइस 16 वर देयर, और वो एक तरीके से रूलर थे और बहुत इकोनॉमिकल क्रंचेस पे चल रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी। और फ्रेंच सोसाइटी या फ्रांस 3 स्टेट्स पे डिवाइडेड है। ओके, तो 1 and 2, 3। सो 1 इज़ लाइक नोबल्स मतलब किंग्स एंड ऑल, यहाँ पे ये रिलीजियस पीपल और डॉगमेटिक पीपल, और थर्ड क्लास में बिग लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट, फार्मर्स सारे थे। तो ये इन तीनों ने, ये जो थर्ड क्लास, एक ऐसा इवेंट हुआ था जहाँ पे किंग लुइस 16 ने लोगों को बुलाया और कहा कि भाई अब हमारे को टैक्स लाना है, कुछ ऐसे। हम बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। हाउएवर जो थर्ड स्टेट थे उन्होंने इस पर रिवेल किया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत बात है।
ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि थर्ड स्टेट में कुछ पहले के ऊपर के जो लोग थे, क्योंकि ये इस थर्ड स्टेट में सब थे, रिच और मिडिल क्लास पीजेंट्स और बिजनेसमैन एंड मर्चेंट, लोअर क्लास, एवरीवन क्लब टुगेदर इन द थर्ड स्टेट। और इनको बहुत टैक्स देना होता था, इनके ऊपर बहुत ऑप्रेस्ड करते थे नोबल्स एंड रिलीजियस डॉगमेटिक पीपल, और इनकी कोई वैल्यू भी नहीं थी। तो यहीं के लोगों ने क्या किया, रिबेल किया। और अगर आप यही सिस्टम इंडियन कंडीशंस में समझेंगे, इंडियन सोसाइटी में समझेंगे, ऐसे ही तो इंडिया में भी हुआ था। जो ब्राह्मण्स थे वो रूल करते थे, जो ब्राह्मण थे वो सारी चीज़ डिसाइड करते थे कि ऐसा होगा, ये करना है, डिवीजन ऑफ लेबर था। और ब्राह्मण्स एंजॉय करते थे एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस, जो कि क्षत्रियास नहीं कर पाते थे, जो कि शूद्रास नहीं कर पाते थे। अगर हम एक एंगल देखें तो गौतम बुद्ध एंड बोथ जैनिज्म दे बोथ बिलोंग टू क्षत्रिय क्लैन। तो आप तभी फिलॉसफी भी कर सकते हैं, तभी आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ है। तो ये कुछ और डिस्कशंस हैं, वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन समझना है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन पॉलिटिकल चेंजेस लेके आए। तो अब ये जो फर्स्ट क्लास थर्ड स्टेट में जो एजुकेटेड लोग थे वो वेल अवेयर थे जॉन लॉक की स्टडीज़ से, जैक्यूज की स्टडी से, मॉन्टेस्क्यू से, और ये फिलोसफीज पढ़ चुके थे। वो एक एजुकेटेड माइंड थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल द स्पिरिट ऑफ लॉ था मॉन्टेस्क्यू की, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट थी, ये सारी कुछ बुक्स थी जो इन लोगों ने पढ़ी हुई थी। अब यहाँ पे लोगों ने रिवोल्ट किया, नेशनल असेंबली क्रिएट हुई। नेशनल असेंबली क्रिएट होने के बाद लोगों ने कहा कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फिर फर्दर हम देखेंगे जैकोबिन क्लब के बारे में। जैकोबिन क्लब में उसके बाद क्या होता है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। तो जैकोबिन क्लब फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम समझेंगे, ठीक है। नेशनल असेंबली क्रिएट हुई और लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करी। फिर उसके बाद जैकोबिन क्लब, जहाँ पे अब ऑप्रेस्ड और जो इस थर्ड स्टेट में जो और गरीब लोग थे, जो और ऑप्रेस्ड थे, उन्होंने भी इस चीज़ की बात करी। और उनके बहुत फेमस लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। जब ये पावर में आए तो ये भी बहुत फैनेटिक बन गए। पावर चीज़ ही ऐसी है कि आते ही लोग बदल जाते हैं, ओके। फिर 793 एंड 794 में फिर नेपोलियन का आप देखेंगे रिजम हुआ। हाउएवर फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी जैसी बातें करी, और वहीं पे ओलंपिया डी गॉर्जेस जैसी फेमिनिस्ट भी थी, और उन्होंने बोला कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ही नहीं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मेन एंड वुमेन दोनों चीज़ हों, ओके। तो अभी मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस किया आप लोगों के साथ, और मैंने रिनेसांस डिस्कस करा। एनलाइटनमेंट मैंने आप लोगों से डिस्कस करा है कि क्या था एनलाइटनमेंट का मतलब। एनलाइटनमेंट का मतलब कि ठीक है, अब जो भी हम अपने समाज को समझेंगे वो रीजंस और रैशनैलिटी के थ्रू समझेंगे, सिर्फ हम उसको फॉलो नहीं करेंगे जो हमसे डॉगमेटिक और रिलीजियस लोग कहेंगे। एनलाइटनमेंट पीरियड समझ लिया आपने, इसमें आपको थिंकर्स आने चाहिए, थॉमस हॉब्स, ओके। क्या उनकी थ्योरी थी, लेविथियन बुक में आप मेंशन करिए थॉमस हॉब्स की जो बुक थी लेविथियन। तो आप जो भी बात अपने आंसर्स में लिखेंगे उसको वेग मत करिए, अपने आंसर को कंक्रीट बनाइए। वो कंक्रीट बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जहाँ पे आपने थॉमस हॉब्स को कोट किया आप उनकी बुक भी बताइए कि इस बुक में इन्होंने ये सेंट्रल थीम कहा है। तो ये कुछ नोट्स हैं जो हम बाद में समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं जॉन लॉक की बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट्स, और इसमें इन्होंने किस तरीके की बात करी है, थ्योरी ऑफ सिविल सोसाइटी, क्या सही है समाज में, क्या समझ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जो बात करी। तो लेकिन आपको बताना भी पड़ेगा, आपको याद भी करना पड़ेंगे ये बुक्स के नेम और कोट करने पड़ेंगे, तभी आप रेस में आगे दौड़ोगे। अदरवाइज़ तो मेंस तो बहुत सारे बच्चे लिखते हैं और इंटरव्यू तक भी जाते हैं, लेकिन आईएएस ऑफिसर्स तो उनमें से कुछ ही बनते हैं ना। तो आपको अपनी मेंस में ऐसी प्रिपरेशन करनी है, अपने ऑप्शंस को इतना करेक्ट करना है, इतना सॉलिड बनाना है कि आप ऐसे आंसर लिखो कि आप टॉप करो, ठीक है। और जैसे मैं आप सबको पहले ही बोलती हूँ कि प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू सब एक साथ ही प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये कुछ बुक है, ये मॉन्टेस्क्यू के बारे में हम देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको क्या कर रही हूँ,
आप लोग समझ रहे हैं ना, मैंने सिर्फ ये किया है कि मैं अभी जो टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक उसका आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ऐसा होता है ना, हम क्या करते हैं, पहले हम नक्शा बनाते हैं, मैप बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही काम हमें अपने सिलेबस के साथ भी करना है। और ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि 4 महीने में 6 महीने में अपना सिलेबस कवर अप करना है। आपको एंजॉय करना है और छोटी छोटी चीज़ें समझनी है। बहुत सारी बुक्स तो वैसे भी नहीं पढ़नी है। जो नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और थोड़ा बहुत जो मैं आपको समझा रही हूँ उतना ही है, क्योंकि आंसर राइटिंग में इट्स अबाउट 270 to 280 वर्ड्स और इस क्वेश्चन में से तो 150 वर्ड्स का ही आता है। तो ऑफकोर्स आपको स्मार्ट बनना है। तो जितने गुरुज बैठे हैं इंडस्ट्री में, यहाँ पे आपके जो सीनियर्स बैठे हैं या मैं भी जो भी बात कर रही हूँ उसको वेरीफाई करिए कि कितना सही है आपके लिए। क्या सही में सोशियोलॉजी या ऑप्शनल जैसा सब्जेक्ट आप 4 महीने में कर पाएंगे? तो मुझे लगता है कि थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि आप 4 महीने में, आपको सिर्फ 4 महीने में कॉन्सेप्ट समझना है, क्लैरिटी समझनी है, बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक प्रोसेस है, इसको आप रोकेंगे नहीं। सोशियोलॉजी आपकी एक बुक से 2 बुक से नहीं हो सकती है, आपको इंटरकनेक्शन करना होगा, पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप यूपीएससी को क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप यूपीएससी को क्लियर नहीं करना चाहते हैं तो सोचते रहिए कि 6 महीने में कवर करेंगे तो 5 महीने में कवर करेंगे, और होगा नहीं, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन में, मुझे लगता है ये ऑनेस्ट अप्रोच नहीं है। हमें पढ़ना है, समझना है, अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है। और इतना पढ़ने में टाइम कितना लगेगा? अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया है, अगर आप उसको सिर्फ मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स दोगे, ये टॉपिक पूरा कवर अप हो सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, विद 5 आवर्स आप इस टॉपिक को पूरा कवर कर सकते हैं। तो आपको जो बुक्स मैं मेंशन कर रही हूँ वो आपको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस वो आपको नाम याद होना चाहिए और उसमें थीम क्या है। मैंने आपको भी रिनाइंसेंस का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है सिर्फ एक वर्ड में, दैट इज़ रीबर्थ। एनलाइटनमेंट आपको समझाया है एक वर्ड में कुछ थिंकर्स के साथ। तो यही की है आगे भी, और यही चीज़ हम आगे भी करेंगे। ओके, सो अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये सब हमने समझ लिया है, राइट। ये सारे थिंकर्स हैं जो हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, बट अभी नहीं। ओके, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स एंड ऑल। तो जो आप अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे मैंने अभी आपको समझा ही दिया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, राइट। तो अब इन सारी चीज़ों से व्हाट हैड हैपेंड, अब आइए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम जानते हैं कि मशीनरीज आई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन से लार्ज स्केल प्रोडक्शन की तरफ हम आ चुके थे। और इकोनॉमिकली अगर हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं और कार्ल मार्क्स का अगर हम बिल्कुल उनकी थ्योरी को फॉलो करते हैं, और काफ़ी हद तक मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मुझे लगता है कि हाँ ऐसा है, हमारा जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो दूसरी चीज़ों को चेंज करता है। और यही तो थ्योरी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स की, जो लोग समझ नहीं पाते और बहुत उनको लगता है कि हमारे 5 से 6 7 8 घंटे इस पर वेस्ट हो जाएंगे। एक्चुअली वेस्ट क्या आप टाइम करते हो ये सोचने में कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट टाइम वेस्ट होता है आपकी खुद की छोटी सोच की वजह से। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में सिर्फ मैं आपको 4 लाइन्स में समझाती हूँ। कार्ल मार्क्स का कहना है कि हमको ये समझना है कि लोग सर्वाइव कैसे करते थे। तो उन्होंने प्रीवियस या पैलियोलिथिक या स्टोन एज की बात करी, और उन्होंने बोला कि जब हम लोग हंटर एंड गैदरर्स थे, ओके, जब हम सैविज थे, हंटर एंड गैदरर मतलब कि पैलियोलिथिक स्टेज, ओके, स्टोन एज, जहाँ पे हम हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और आसपास की चीज़ों को गैदर करके जी रहे थे, उसमें सोशल डिफरेंशिएशन कम था। लेकिन जैसे ही हम पेस्टोलिस्ट बने, पेस्टोलिस्ट मतलब कि हमने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करा, हॉर्टिकल्चरलिस्ट बने, कुछ प्लांट्स और ये सब हमने ग्रो करने स्टार्ट करे, हमारे पास डिफरेंशिएशन आया। ओके, डिफरेंशिएशन कैसे आ सकता है कि मेरे पास 10 जानवर है, तुम्हारे पास 20 जानवर है, मेरे जानवर की क्वालिटी अच्छी है, तुम्हारे जानवर की क्वालिटी ख़राब है, तो इससे तो सोशल डिफरेंशिएशन आया ना। फिर उसके बाद हम आए दूसरे फेज पे, दैट इज़ एग्रीकल्चर। ओके, अब एग्रीकल्चर टाइम में क्या हुआ, एग्रीकल्चर टाइप में सरप्लस आया। सरप्लस ऑफ व्हाट, फूड का। कैसे आया, क्योंकि ह्यूमन बींग्स इवॉल्व करते हैं, और आप देखोगे जितने भी स्पीशीज़ हैं ना, सबसे कमज़ोर स्पीशीज़ ह्यूमन बींग्स ही हैं। एंथ्रोपोलॉजी में ये चीज़ बहुत क्लियर है, और सोशियोलॉजी भी आपको पता है, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज़ द सेम थिंग। वी हैव टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड।
क्यों इंसानों को ज़रूरत पड़ी स्टोन्स को इवॉल्व करने की, स्टोन टूल्स बनाने की? क्योंकि हमारे जब हम इवॉल्व करते गए, जब हम होमो सेपियंस सेपियंस बन गए, जब हम होमो इरेक्टस बन गए, तो हमारे नाखून किसी काम के नहीं है। हम नाखून से किसी भी जानवर को नहीं मार सकते, हमारे दांत किसी काम के नहीं है। इतने बड़े बड़े जानवरों को हंटिंग कर रहे हैं, कैसे? बिकॉज ऑफ ब्रेन, क्योंकि हम इंटेलेक्ट बीइंग हैं, हम सोशल बीइंग के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग बीइंग है। और यही तो सोशियोलॉजी कहती है, दैट सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन अ क्रिटिकल मैनर, इन अ साइंटिफिक मैनर। तो ये भी तो समझने की ज़रूरत है ना कि हमारे नाखून काम के नहीं थे, तो हमने क्या किया? हमने एक पत्थर उठाया, दूसरे पत्थर को उठाया, उस पत्थर को तोड़ा, उसमें से फ्लेक निकाला और वो नोकीला बना, और उसको हमने दोबारा से नोकीला बनाया, और उससे हम बड़े से बड़े जानवर को काट के खा सकते थे। तो ये हुई ना इंटेलेक्चुअल बात। तो ये बात कैसे आप समझोगे, इसको आपको समझना होगा। तो यही कार्ल मार्क्स ने बोला कि तब जब हम ऐसा करते थे तब फाइट नहीं थी। फाइट कब आई? जब हमने और इवॉल्व हुए इंटेलेक्चुअली, हमने आयरन को समझा कि हम आयरन से भी खेती कर सकते हैं, और कैसे मिक्स करके फायरन में डाल के हम प्लॉ बनाया, और उसके बाद हमने आगे इवॉल्व किया। अब एग्रीकल्चर जब करने लगे तो एग्रीकल्चर की देखभाल करने के लिए वहीं पे रुकने की ज़रूरत है। अब हमें हो गया प्यार अपने लैंड से, अपने ज़मीनों से। अब ये धीरे धीरे बन गया प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी जब ये बन गया तो यहाँ पे आ गया रूल। अब यही चीज़ कैसे, और इसी को हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। कभी पढ़ा होगा ना, सुना होगा आप लोगों ने ये टर्म फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का खेल ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब यही बात तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास लैंड है, वो क्या करते हैं? वो दूसरों को ऑप्रेस्ट करते हैं। बस यही तो थ्योरी है कार्ल मार्क्स की। फिर ये चेंज हुआ कैपिटलिज्म में। अब कैपिटलिज्म में क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड आ गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस आ गए, तो फैक्ट्री सिस्टम आने लगा। और ये फैक्ट्री सिस्टम में क्या हुआ? अब ये फैक्ट्री कहाँ बन रही है? लैंड भी तो बनेगी, और पूरा सिस्टम गॉट चेंज। तो ये सारी चीज़ें से क्या हुआ? अब हम लोग आ चुके हैं अपने सिलेबस के सेकेंड पॉइंट में, सोशल चेंजेस। जब पॉलिटिकली चेंज हुए तो सोशल चेंजेस भी हो गए, राइट? अब लोग क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे कैओस है। अब हम लोग फाइट कर रहे हैं कि भाई आप लोग हमें ऑप्रेस कर रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में यही तो हुआ। अब लोग पहले जहाँ पे एग्रीकल्चरल थे, लेबरर थे, जहाँ खुद ही अपनी चीज़ें बना के अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे, अब वो इंडस्ट्री ही नहीं, अब वो काम ही नहीं मार्केट में, तो आप करेंगे क्या? और अब ये चीज़ चेंज होने लगे। किंग्स को लोग मार के ख़त्म करने लगे। अब किंग भी कुछ रूल नहीं कर पा रहे, तो अब होगा क्या? अब यहाँ से कैओस होना स्टार्ट हो गया। तो 18th and 19th century is the period which witnessed a social chaos because of, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? रेनेसांस से। अब लोगों ने सोचना शुरू किया कि करा क्या जाए। प्रॉब्लम हुई, सोशल प्रॉब्लम्स। लोग बहुत ही काफ़ी तादाद में, काफ़ी नंबर्स में मर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है। फैक्ट्री कंडीशन जो हमने पहली बारी स्टार्टिंग अब देखा हमने 18th-19th सेंचुरी में, उसमें लोग बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल लाइफ जी रहे हैं, ओके? और काम ख़त्म होता जा रहा है और कुछ है ही नहीं, तो अनार्की आई ना सोसाइटी में। अब जो फिलोसोफर्स हैं वो क्या करेंगे? वो इनको चेंज समझेंगे। तो जो सोशल और 18th और 19th सेंचुरी में आया, वो क्या आया? ये जो फ्यूडल स्ट्रक्चर था वो टूट गया था, और न्यू सोशल ऑर्डर और न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर वर इमर्जिंग, दैट इज़ कैपिटलिज्म। ओके, मैं एक लेक्चर ज़रूर बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को समझाऊंगी कि कैपिटलिज्म कैसे अलग है सोशलिज्म से। ओके, सोशलिज्म से कैपिटलिज्म, सोशलिज्म समझने से पहले हमें फ्यूडलिज्म समझना पड़ेगा कि फ्यूडलिज्म क्या है। ओके, और भी बहुत फासिज्म क्या है, ये कुछ थ्योरीज़ हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए। अब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आया। अब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री सिस्टम आए और वर्कर्स क्लास आए। अब सोसाइटी दो लोगों में बढ़ गई, एक जो कैपिटलिस्ट थे या फैक्ट्री ओनर्स थे, और एक जो वर्कर्स से, और इसी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अब देखिए इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी,
बस 3 वर्ड्स में, 3 लाइन में मैं आपको अभी समझाऊंगी, दैट्स इट। कार्ल मार्क्स का कहना है समाज को समझने के लिए सिर्फ हमें समझना है कन्फ्लिक्ट, दैट्स इट। उन्होंने पूरी थ्योरी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताई। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट क्या, दैट इज रिच और पुअर। ये बहुत मैंने जनरल वर्ड यूज़ करा है, हाउएवर कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआसी और प्रोलेटरेट जैसे वर्ड्स यूज़ करे हैं। बस कार्ल मार्क्स का कहना है कि भैया समाज को समझिए कैसे, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। कन्फ्लिक्ट मतलब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। कैपिटलिस्ट का इंटरेस्ट है टू हैव प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और किस बेस पे कमाना चाहते हैं, पुअर्स को, अपने लेबरर्स को ऑप्रेस करके। ठीक है, अब दूसरी थ्योरी है एमाइल डर्कहाइम। एमाइल डर्कहाइम कह रहे हैं कार्ल मार्क्स ऐसा तो कुछ भी नहीं है, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, बोल रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर है। कैपिटलिस्ट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो वर्थ है। एक डॉक्टर इसलिए बनता है क्योंकि उसने इतनी स्टडी करी है, अब वो डॉक्टर बना है, उसने इतनी मेहनत करी है, तो उसको प्रिविलेजेस भी उतने ही मिलेंगे, राइट। ये है एमाइल डर्कहाइम का कहना कि गार्बेज कलेक्टर अपना काम करेगा, हम लोग एक पार्ट हैं, हम लोग एक सोसाइटी। एमाइल डर्कहाइम ने क्या बात बोली, तो एमाइल डर्कहाइम की थ्योरी को, पूरी एमाइल डर्कहाइम की थ्योरी को हम एक ही वर्ड में समझेंगे, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, सो दिस इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, दैट्स इट। सो एमाइल डर्कहाइम का कहना यही है कि दिस इज अ डिवीजन ऑफ लेबर और हम लोग फंक्शनल हैं। फंक्शनल कैसे हैं, जैसे कि एक हम लोग एक सोसाइटी है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है। जैसे ऑर्गेनिज्म में आइज़ का अलग रोल है, ब्रेन का अलग रोल है, हैंड्स का अलग रोल है, सबका अलग अलग रोल है, राइट। और फिर हम एक साथ फंक्शन करते हैं, तो सारे इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं। एमाइल डर्कहाइम का कहना ये है, मैक्स वेबर का कहना है दैट वी नीड टू हैव अ इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच और यू कैन से सोशल इंट्रैक्शनिस्ट अप्रोच। It is a social interactionist approach, that is of interpretivist, like we have to understand social actions। कि अगर कोई समाज में कुछ बिहेव कर रहा है, अगर कैपिटलिज्म फ्लरिश हुआ है कुछ हिस्सों में यूरोप के और किसी हिस्सों में नहीं हुआ, तो उसका रीज़न क्या है, हमें समझने की ज़रूरत है। हमें वी नीड टू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये है कुछ चीज़ें। अब देखो, आपने देख लिया कि सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई। अगर आपने एमाइल डर्कहाइम को, कार्ल मार्क्स को, वेबर को डिफाइन कर लिया और ये सारे फैक्टर्स डिफाइन कर लिए, तो आपका ये टॉपिक कवर हो गया। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया है, मैंने आपको आउटलाइन दिया है दैट हाउ इट हैज़ टू बी डन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्री इंडस्ट्रियल एरिया, ये सब इरा क्या था, ओके, एंड हाउ सोसाइटी हैव इमर्ज। न्यू सोशल स्ट्रक्चर आए इंडस्ट्रियलाइजेशन में, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हुआ, एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी क्या करने लगी, सोशियोलॉजी है क्या, ओके, मैथमेटिक्स एंड ऑल सारे है। सोशियोलॉजी इज़ द यंगेस्ट डिसिप्लिन और सोशियोलॉजी को कहा जाता है कि ये क्वीन है सारे डिसिप्लिन्स की। ओके, तो ये सारे कुछ डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन आज ये समझना ज़रूरी है। फिर तो आप जब ये यहाँ तक आप लेके आए, तो फिर हर्बर्ट स्पेंसर को कोट करेंगे अपने आंसर को, कार्ल मार्क्स को कोट करेंगे, एमाइल डर्कहाइम को कोट करेंगे। और देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स में इनकी पूरी थ्योरीज बता रखी है। यही आपको भी करना है, क्योंकि 150 वर्ड्स में हम इतनी सारे आंसर नहीं लिख सकते, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इम्प्रेस भी तो करना है, हमें ये भी तो दिखाना है कि हमारे पास नॉलेज है और हम अपने नॉलेज को स्ट्रक्चरली इनपुट कर सकते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे आइए और इधर समझिए कि इस टॉपिक का आपको अंडरस्टैंडिंग कैसी करनी है। ठीक है, तो पहले तो हमने मॉडर्निटी समझ लिया, सोशल चेंजेस क्यों आए यूरोप में और सोशियोलॉजी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले मॉडर्निटी समझने के लिए तो ऑब्जेक्टिव में आपको समझना है रिनाइंसेस का क्या मतलब रहा, एनलाइटनमेंट का क्या मतलब रहा, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का, एंड देन सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई। तो ये है फैक्टर्स, और इन सब के वजह से सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आए और कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स थी 19th सेंचुरी में, ये भी हमको समझना है। अब यहाँ पे आए
क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजी। ठीक है, ये चीज़ है आपका इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव। अब आप यहाँ पे देखिए बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्निटी आप देंगे अपने आंसर में, और उसके बाद आप देंगे रिनाइसेंस, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवोल्यूशन, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, सोशियोलॉजी की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, रिफ्लेक्शन ऑन क्लासिकल थ्योरी। आप लोग मेरे पीडीएफ्स को और को रेफ़र करिएगा, मैं लिंक में आपको शेयर करूँगी। ठीक है, थिंकर्स इसमें आप 3 को ही कोट कर देंगे बहुत है, लेकिन आगे भी जॉर्ज मिल हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं, वो अपने आप आपको आ जाएंगे। डू नॉट वरी, जब आप सोशियोलॉजी को कवर अप कर लेंगे आपके पास प्लेथरा ऑफ थिंकर्स होंगे। ठीक है, बस जुड़े रहिए मेरी क्लास के साथ, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ और मुझे पता चलती रहे कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या। अब दूसरी बात क्या है, एक पॉइंट आप लोग समझ लीजिए, जितना आप लोगों को समझना है, जो भी आपकी नॉलेज है उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर आपको पता ही नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं। ओके, यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछती है वही की है आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने 2021 पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज। कमेंट, हाउ डिड इंटेलेक्चुअल फोर्सेज लीड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये 2020 पे क्वेश्चन आया। पहले पे आपको बताना है यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज। क्या ऐसा हुआ, कमेंट करना है, आप फ्री हो, और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ऐसा था? हाँ ऐसा था, हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक काउंटर थिंग भी हम डालेंगे जब अपनी बात करेंगे। अगर मॉडर्निटी का मतलब है टू हैव रैशनैलिटी, टू हैव रीजंस, तो इंडियन सोसाइटी, हिंदू ट्रेडिशन का तो बेस ही यही है। इंडियन ट्रेडिशंस और इंडियन फिलोसफीज़ की हम जब बात करते हैं, वेदांत फिलोसफी की अगर हम बात करते हैं, म्यांमार का जो हमारी फिलोसफी है उसकी जो हम बात करते हैं, ये जो हमारी कुछ फिलोसफी है, समख्या फिलोसफीज़ की जो हम बात करते हैं, योगा की जो हम बात करते हैं, ये तो यही बात कह रहे हैं। Indian philosophy talks about that one has to understand things according to the forms। मीमांसा फिलोसफी जो है, हमारी समख्या फिलोसफीज़ जो है, वेदांत फिलोसफी जो है, वो यही बात कह रही है और बहुत पहले कही है। 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी में ये बात कह चुके हैं कि अपने आसपास की चीज़ों को समझो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो क्या ये काउंटर मॉडर्निटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं है? तो ये पॉइंट हमें डालना होगा अपने आंसर में। और यहीं से मैं आपको एक और बात समझाना चाहूँगी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक साथ समझिए। ठीक है, तो ये एक कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आंसर राइटिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो मैं करूँगी, मैं आपको इसमें समझाने के बाद ये आंसर्स किस तरीके से लिखना है ये भी समझना होगा आप लोगों को। जब हम पेपर 2 की बात करते हैं ना, तो हम इंडियन सोसाइटी को समझते हैं, तो इंडियन सोसाइटी का इंडियन ट्रेडिशंस एंड इंडियन फिलोसफीज़ जब हम पढ़ेंगे तो हम ये सारी फिलोसफीज़ पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे फिर कोरिलेट कर देना है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एक साथ पढ़ते हुए चलना चाहिए। ठीक है, आज तो मैं अपना करंट अफेयर्स वाला आई विल जस्ट शो यू कि किस तरीके से कुछ करंट अफेयर्स हम पढ़ते चलेंगे ताकि हमारा पेपर 2 भी रेडी होता चले जाए। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन आया है, हाउ डिड इंटेलेक्चुअल फोर्सेस लीड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इंटेलेक्चुअल फोर्सेस मतलब वही जो रिनाइसेंस के फिलोसोफर्स थे, एनलाइटनमेंट के फिलोसोफर्स थे, मॉडर्न क्लासिकल थिंकर्स जो थे, उन सब ने सोशियोलॉजी को इमर्ज करने में हेल्प किया। तो हाउ डिड, हाउ कैसे, तो आप रिनाइसेंस से ही शुरू करोगे। यहाँ पे हाउ हैज़ एनलाइटनमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, तो एनलाइटनमेंट ने कैसे कंट्रीब्यूट करा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सोशियोलॉजी इमर्ज इन यूरोप एंड फ्लरिश टू बिगिन विद ऑन सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन द यूएसए। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुई यूरोप में और फिर यूएस में जाके एंड हुई। ठीक है, तो ये इस पर कुछ और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन और इन सब की बात है। सो हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इज एन आउटकम ऑफ मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। और अगर अभी आप देखोगे कि आपके सिलेबस में
ना फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस हुआ है, ना ऑर्डिनरी एनलाइटनमेंट के बारे में बात करी है, ना कुछ ऐसा कुछ पॉइंट मेंशन नहीं हुआ। तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि अपने आप को थोड़ा सा वेल अवेयर करिए और नॉलेज बेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और ये जो मैंने आपको अभी दिखाया है, और यहाँ पे ये प्लानर्स भी आपके साथ शेयर होगा, आप ये प्लानर्स ले सकते हैं। इसमें आप ये समरी ज़रूर लिखिए, ये आप खुद से करिए, और जो मैंने आपको बात बताई है उसको पॉइंट्स में लिखिए। उससे होगा क्या कि आप लोगों को लिखने की आदत होगी, लिखने से राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी, और आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम दोबारा से मिलेंगे, और अब मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी और आपको उसमें और एक्सप्लेन करूंगी कि मॉडर्निटी का मतलब क्या है, रेनेसांस का क्या मतलब है, विद द टिल्ट ऑफ आंसर राइटिंग। मेरी हर वीडियो में आंसर राइटिंग ज़रूर होगा, डू नॉट वरी। Thank you so much, and keep watching my channel and motivate me by liking my videos, commenting and subscribing it, and also share it with your friends.